Good afternoon to all. Today we will start our next chapter, chapter number 2. The topics of chapter number 2 are first one is a coupling. So what is coupling and use of coupling and types of coupling. So today's our topics are types of first one is coupling, types of coupling and uses of the coupling and difference between the clutch and coupling. So what is coupling? There are some figures of the couplings are to be used. So what is coupling? So a device that is used to connect two shafts, input shaft and output shaft, driving shaft and driven shaft together for the purpose of power transmissions. So coupling are used to connect two shafts, basically input shaft to output shaft. So what is the need of the couplings? Power can be transmitted by means of the various gear arrangements or a drives only in the shafts are to be parallel. Coupling are used when the shafts are in a straight line and are to be connected end to transmit power. Purpose of the couplings. The basic purpose of coupling are to be used for the power transmissions. तो basically हम इसे power transmission के लिए use करते हैं जहाँ हमें power को एक जगह से दूसरी जगह transmit करना है. और generators, ठीक है, generator से हम अपना engine जैसे हम engine rotate कर रहे हैं generator से power transmit कर रहे हैं gearbox से wheels की तरफ. Joining the misalignment of the shafts and reduce the shock violations and easy to assemble and disassemble. So first one is a power for the use of power transmission, joining the misalignment of the shafts and reduce the shock violations and easy to assemble and disassemble. So a coupling. Coupling is an essential device to connect one shaft to another or to couple or a driving shaft to a driven shaft. The available shafts in the market are up to 7 meters length because more lengthy shafts are not made due to the manufacturing and transporting difficulties. In order to have a greater length, two or more pieces of the shaft are joined by means of coupling, which may be permanent or a semi-permanent connection. तो बेसिकली हमारे पास जो शाफ्ट है कहता है वो उसकी लेंथ लिमिटेड है. हम मैक्सिमम जो शाफ्ट यूज कर सकते हैं 7 मीटर तक यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगी अगर ज्यादा लंबी शाफ्ट होगी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज पड़ेगी. तो उस करके हम क्या करते हैं जो दो शाफ्ट्स को आपस में कनेक्ट करना होगा तो हम कपलिंग करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है. तो इसमें यही कह रहे हैं हमारे पास कपलिंग इज एसेंशियल डिवाइस टू कनेक्ट वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट और टू कपल द ड्राइविंग शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट. तो ड्राइविंग शाफ्ट है वो ड्रिवन शाफ्ट को रोटेट करेगी, ठीक है. नेसेसिटी ऑफ अ कपलिंग. The following are some necessities of the coupling. First one, to provide the connection for the shaft units which are manufactured separately, such as motor and generator. जैसे मोटर और जनरेटर को हमें कनेक्ट करना है, ठीक है. मोटर अगर मोटर क्या करेगी अपना जो रोटरी मोशन होगी जनरेटर को देगी और जनरेटर आगे अपना काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा. ऐसे ही टू प्रोवाइड द कनेक्शंस फॉर द रिपेयर्स एंड द अल्ट्रेशंस. कहीं हमें रिपेयर्स करनी है तब उनसे कपलिंग को खोल सकते हैं. To provide long line shaft composed of a number of small shaft pieces put together and to end by coupling and supported by the bearings. To provide for the misalignment and mechanical flexibility of the shafts. To reduce the transmission shocks loads from the shaft, one shaft to the another. To provide the protection against overloads. To alter the vibrations characteristics of the rotating units. So advantages of the coupling. So a good shaft coupling has the following advantage. First one, it is easy to connect or disconnect. तो इसे connect जोड़ना और remove करना कहता है easy है. इसको अगर हमें connect करना है और disconnect करना है तो वो easily हम कर सकते हैं. कहता है this is one of the advantage of coupling. Second one, it transmit full power from one shaft to another. जहाँ हमने joint लगाया हुआ कहता couple किया हुआ दो shafts को, तो वहां से जो पावर है कहता वो इक्वली ट्रांसमिट होगी, बराबर ट्रांसमिट होगी. इट ट्रांसमिट फुल पावर. इट इज लेस कॉस्टली. जो कॉस्ट भी कहते इसकी ज्यादा नहीं है. इट इनेबल्स टू मेक अ लॉन्ग लाइन शाफ्ट, ठीक है, एक लंबी शाफ्ट की चेन हम बना सकते हैं. इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवरलोड्स. यूज ऑफ द शाफ्ट कपलिंग. इट इज यूज्ड टू कनेक्ट two parts which are to be manufactured separately.
that is motor and generator or the motor and the compressor. तो बेसिकली हम कहाँ यूज कर रहे हैं, कहते हैं अगर मोटर को हमने मोटर को जनरेटर से कनेक्ट करना है या मोटर को कंप्रेसर हम यूज कर रहे हैं तो कंप्रेसर के साथ हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं, शाफ्ट को with the help of coupling उसे कनेक्ट कर सकते हैं. It is used with the shafts having intersecting axis that is in the same straight line for a flexible or a rigid couplings. It is used with the shafts having intersecting axis for a universal couplings. It is used with the shafts having axis parallel and its relatively small distances apart. It is used to connect two shafts whose axes intersect at an angle, that is propeller shaft of an automobile connected with the differential. तो बेसिकली जब गियर बॉक्स से हमें पावर ट्रांसमिट करनी है 4 व्हील ड्राइव में, ठीक है, तो हम कैसे कर रहे हैं, तो रियर व्हील पे हम क्या कर रहे हैं, पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो जो शाफ्ट लगी है उसको कनेक्ट किया हमने गियर बॉक्स और डिफरेंशियल के साथ विद द हेल्प ऑफ कपलिंग्स. It is used to connect two shafts whose axes have a lateral misalignment. So, difference between clutch and coupling. Basically, the clutch are to be used for the engage or disengage the power from the engine. So, a coupling is a device used to make permanent or semi-permanent connections, while a clutch permits rapid make and break and it will be wish of the operator. ठीक है, ये ऑपरेटर पे होगा जब उसे एंगेज करना है पावर को, डिसएंगेज करना है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास क्लच और कपलिंग का, ठीक है, हर बार 5 नंबर में फाइनल में आ भी जाता है. ठीक है, पूछता है डिफरेंस बिटवीन क्लच एंड कपलिंग है. तो क्लच बेसिकली जैसे हमने ऑटोमोबाइल में पढ़ा, ये क्लच कहाँ हम यूज करते हैं, क्लच को हम यूज करते हैं पावर को इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए. जैसे हमें जब गियर चेंज करने होते हैं, ठीक है, तो हम क्लच को प्रेस करते हैं, तो इसीलिए करते हैं हम उसको पावर को डिसएंगेज करते हैं कि अपना गियर चेंज कर पाए. ठीक है, और ऐसे ही उसे फिर इंगेज कर लेते हैं. तो ऐसे ही तो डिफरेंस बिटवीन हमारे पास क्लच और कपलिंग में. तो क्लच में डिफरेंस क्या है, क्लच में क्या कह रहा है, टू एंगेज द क्लच द प्रेशर इज प्रोवाइडेड बाय द प्लेट और प्रेशर प्लेट. उसमें जो प्रेशर प्लेट लगी तो कहते हैं वो प्रेशर अप्लाई करती है. टू कपलिंग में कह रहा है टू एंगेज टू शाफ्ट्स द प्रेशर इज प्रोवाइडेड बाय नट एंड बोल्ट्स. जो कपलिंग को हमें करना पड़ेगा, नट एंड बोल्ट से टाइट करना पड़ेगा. तो कहता है जो प्रेशर अप्लाई करेगा नट एंड बोल्ट अप्लाई करेंगे कपलिंग में, और यहाँ प्रेशर प्लेट अप्लाई करेंगे. क्लच में कह रहा है इट इज यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम इंजन टू गियर बॉक्स. बेसिकली इसको यहाँ यूज कर रहे हैं इंजन से गियर बॉक्स में पावर को ट्रांसमिट करना था, हम उसके इन बिटवीन हमने क्लच लगाया हुआ है. और कपलिंग इट इज आल्सो यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम ट्रांसमिशन शाफ्ट टू डिफरेंशियल. तो कपलिंग को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, गियर बॉक्स से जब पावर को हम ट्रांसमिट करने रियर व्हील्स में. ठीक है, और इसको हम यूज कर रहे हैं क्लच और उसके बीच में, अपना इंजन और गियर बॉक्स के बीच में. So in the clutch, engagement and disengagement can be made with both the shafts are rotating. In the coupling, engagement and disengagement cannot be made until both the shafts are not stopped. ठीक है, जब उसे हमें रिमूव करना तो हमें कहता तभी रिमूव कर पाएंगे जब उसे हम स्टॉप कर पाएंगे कपलिंग को, यानी कि शाफ्ट को स्टॉप करेंगे, स्टेशनरी लाएंगे, तभी हम उसको इंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं, यानी कि रिमूव कर सकते हैं, उसे चेंज करना है. ठीक है, बट क्लच में ऐसा नहीं कहता. क्लच इट इज ऑफ टू टाइप्स, फ्रिक्शन क्लच एंड फ्लूइड फ्लाइट क्लच. बट इन कपलिंग इट इज ऑफ टू टाइप्स, रिजिड कपलिंग एंड नॉन रिजिड टाइप कपलिंग. क्लच में फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी बट फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी. तो कपलिंग में हमें दोनों में कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, जैसे दोनों शाफ्ट्स को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा बीच में, बट ऐसा कहता है फिजिकल कॉन्टैक्ट क्लच में ऐसा कोई नेसेसरी नहीं. Next one is types of coupling. So basically there are two types of coupling. First one is a rigid coupling and second one is a non-rigid type coupling. और non-rigid को flexible coupling कहते हैं. इनकी flexibility के कारण उसका नाम रखा गया है flexible coupling. ये आगे सब divided है दोनों couplings ना, rigid coupling और non-rigid coupling. जो rigid coupling है वो divide है sleeve और muff coupling कहता है, clamp और straight muff coupling एंड फ्लैंज कपलिंग. एंड फ्लैंज कपलिंग में बस कहता है दो तरह की, प्रोटेक्टेड टाइप और अनप्रोटेक्टेड टाइप कपलिंग्स. तो बेसिकली इसको डिवाइड किया गया. फर्स्ट में तो इसे यही डिवाइड किया गया, रिजिड कपलिंग होती है हमारे पास और नॉन रिजिड टाइप कपलिंग होती है. तो रिजिड कपलिंग में हमारे पास आगे 3 टाइप्स हैं, स्लीव मॉफ कपलिंग और क्लैंप स्प्लिट मॉफ कपलिंग और फ्लैंज कपलिंग, प्रोटेक्टेड टाइप और अनप्रोटेक्टेड टाइप. सो इन टाइप्स ऑफ कपलिंग there are different types of coupling which are used for the different purposes.
they differ in shape and construction. The choice of the particular type depends on whether the desired transmission of motion is continuous or a periodic, or the axis of the shaft to be joined are parallel in alignment or parallel but not alignment or intersecting. Therefore, shaft couplings are divided into two main groups as follows. First one is a rigid coupling and second one is a non-rigid or a flexible coupling. So what is rigid coupling? A rigid coupling, it is used to connect two perfectly aligned shafts and in the following types. So first one is a sleeve or a muff coupling, clamp or split muff coupling and flange coupling. फ्लैंज कपलिंग आगे डिवाइड किया उसने प्रोटेक्टेड टाइप और अनप्रोटेक्टेड टाइप में, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में हम आगे. ऐसी सेकंड वन जो था हमारे पास फ्लेक्सिबल कपलिंग से, it is used to connect two shafts having both lateral and angular misalignment and on the following types. bush pin type होती है हमारे पास फ्लेक्सिबल कपलिंग है, यूनिवर्सल कपलिंग होती है, ओल्ड टाइम कपलिंग होती है. तो ये जो दो तरह की कपलिंग है हमारे पास, रिजिड और फ्लेक्सिबल कपलिंग. रिजिड में हमारे पास स्लीव है और क्लैंप है और फ्लैंज है, और हमारे पास फ्लेक्सिबल में बुश पिन टाइप है, यूनिवर्सल कपलिंग है और ओल्ड हैम कपलिंग है. ठीक है, तो उसको सब डिवाइड किया गया आगे. तो ये हमने डिटेल में हमने ये टाइप्स ऑफ कपलिंग में यही पढ़ना है. तो फर्स्ट वन इज अ स्लीव और मफ कपलिंग. स्लीव कपलिंग भी कहते हैं इसको, मफ कपलिंग कहते हैं. तो डायग्राम से कुछ क्लियर हो रहा होगा तुम्हें. एक स्लीव, ये हमारे पास स्लीव है, ठीक है. एक जो ड्राइविंग शाफ्ट होगी, हम इधर से एंड डाल देंगे सर्कुलर शाफ्ट का, और ड्राइविंग शाफ्ट यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, और होल जो दिए हैं यहाँ से नट एंड स्क्रू से इसको टाइट कर देंगे. की एक रिसेस इसमें है जरूर, उसको की को भी हम इस पे इंसर्ट कर देंगे कि दोनों को इंटरलॉकिंग हो जाए दोनों. ठीक है, तो जब हम इसे दोनों शाफ्ट्स के एंड को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ड्राइविंग और ड्रिविंग को, तो वो मूवमेंट आ जाएगी उसमें, क्योंकि एक शाफ्ट का एंड का ड्राइविंग से कनेक्ट हो जाएगा जो ड्राइविंग मोटर है, ड्रिवन जो हमें ड्रिवन करेंगे उसको फिर आगे. जैसे यहाँ हमने इंजन लगाया हुआ है, आगे हमने जनरेटर से कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, तो ये हमारे पास स्लीव टाइप है. इसका स्लीव बना हुआ कहता है ये हॉलो होगी अंदर से, इसकी थिकनेस होगी हॉलो होगी अंदर से. ठीक है, तो इसमें जो स्लीव में क्या होगा, एक साइड ड्राइविंग सॉलिड शाफ्ट हम फिट करेंगे और इधर से ड्रिवन शाफ्ट फिट करेंगे, और यहाँ से उसको स्क्रू से टाइट कर देंगे और एक की उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे. तो फर्स्ट वन जो थी हमारे पास रिजिड कपलिंग में, मफ और स्लीव कपलिंग, उसमें कहता है स्लीव कपलिंग आर नथिंग बट जस्ट सॉर्ट ऑफ अ थिक हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप कॉल्ड एज अ स्लीव और मफ. तो कहता है थिक हॉलो हमारे पास सिलिंड्रिकल पाइप की तरह है, कहता है ये शेप जो इसकी. मफ कपलिंग और स्लीव कपलिंग को डिफाइन कर रहा है. द स्लीव इज मैन्युफैक्चर्ड कीपिंग द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इन माइंड सो दैट द शाफ्ट फिट्स परफेक्टली इनटू द स्लीव. तो कह रहा है उसको बेसिकली जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो हम शाफ्ट के डायमीटर को अपने ध्यान में रखेंगे कि वो इससे ज्यादा ना हो जाए. ठीक है, क्योंकि शाफ्ट ने इसके अंदर इंसर्ट होना है, तो वो अगर शाफ्ट का डाय ज्यादा हो तो इंसर्ट नहीं पाएगा. तो कहते हैं जब हम इसे डिजाइन कर रहे हैं स्लीव को, तो हम शाफ्ट के डाय को ध्यान रखेंगे. The sleeve manufactured is keeping the diameter of the shaft in mind so that the shaft fits perfectly into the sleeve. The driver and the driven, both the shafts are then inserted into each side of the sleeve. Also, two or more threaded holes are provided into the sleeve as well as in the both of the shafts ends so that they don't move in the longitudinal direction. कहते हैं longitudinally move ना कर पाए, उसे हम लॉक कर देंगे और स्क्रू नट से टाइट कर देंगे. Also, the keyway and the key ensures that the shaft on the sleeve does not slip. तो slipping ना हो उसके अंदर, कहता है की भी इंसर्ट कर देंगे हम उसमें. So rigid coupling कुछ ऐसी भी है हमारे पास, फिगर ये 3D में दिखाई हुई है उसकी rigid coupling की. It is used to connect two shafts which are perfectly in axial alignment. These couplings do not allow any relative motion rotation between the two shafts. ठीक है, तो रिजिड कपलिंग की बात करें, पहले जो मफ कपलिंग था हमारा, अब ये मफ जो हमें डिजाइन करना है. ठीक है, क्योंकि हमें इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे कि डिजाइन ऑफ मफ कपलिंग न्यूमेरिकल होगा, उसमें हमें स्ट्रेसेस चेक करने पड़ेंगे इसके. ठीक है, इसका डायमीटर, इसकी थिकनेस हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, नट एंड बोल्ट्स इसके लिए डिजाइन करने पड़ेंगे, की डिजाइन करनी पड़ेगी इसके लिए. तो उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूलाज हमें यूज करने पड़ेंगे. तो जैसे इसके डिजाइन के लिए क्या रहेगा, रिजिड कपलिंग है क्या बेसिकली, उसमें हमारे पास रिजिड कपलिंग में क्या था, स्लीव और मफ कपलिंग पहला था. तो इट इज अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग. द मटेरियल यूज्ड फॉर द कास्ट आयरन, बेसिकली कहता है जो इसका मटेरियल होगा जो हॉलो शेल हम बनाएंगे ये कास्ट आयरन का होगा, एंड इज यूज्ड फॉर द स्मॉल शाफ्ट्स. स्मॉल शाफ्ट्स के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं. इट इज अ हॉलो सिलिंड्रिकल इन शेप हैविंग द इनर डायमीटर द सेम एज दैट ऑफ द शाफ्ट.
It is fitted over the ends of the two shaft by means of a give head key. Keys के insert कर देंगे हम. The power transmitted from the shaft to the inner shaft through a key and sleeve. Therefore, all the elements of the coupling should be strong enough to transmit torque. The usual proportions of the sleeves of the muff coupling are. तो बेसिकली हमें ये करना है, टॉर्क को ट्रांसमिट करना है. अगर शाफ्ट रोटेट करेगी तो ये स्लीव भी उसका रोटेट करेगा, और जो ड्राइविंग शाफ्ट है वो ड्रिवन शाफ्ट को रोटेट करना स्टार्ट कर देगा. यही होगा बेसिकली इसमें. जो दो शाफ्ट हमने कनेक्ट करनी है, ठीक है, एक साइड तो हमारी ड्राइविंग है और एक ड्रिवन है हमारी, ठीक है. तो इसको हमने क्या करना है, जब ये रोटेट करेंगी पावर को ट्रांसमिट करेगी, जैसे हमारे पास यहाँ मोटर लगी है, मोटर करके अपनी पावर को ट्रांसमिट करेगी जनरेटर को, जनरेटर रोटेट होना स्टार्ट होगा. जब जो जनरेटर रोटेट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे, ठीक है. तो कहता है इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी, द यूजुअल प्रोपोर्शंस ऑफ स्लीव मफ कपलिंग्स आर. सो कहता है उसके प्रोपोर्शंस क्या होंगे. डी इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. जो इसका डायमीटर कहता है वो उसे हम डी से डिनोट करेंगे, और ये डायमीटर क्या होगा इसका, ये वाला डायमीटर होगा इंटरनल. डी इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. जो शाफ्ट इसके अंदर इंसर्ट होगी वो क्या होगी, इंटरनल डायमीटर के बराबर होगी. जो डायमीटर ऑफ द शाफ्ट होगा वो अपना ड्राइविंग और ड्रिवन का वो किसके बराबर होगा, इंटरनल डायमीटर ऑफ द स्लीव. वो हमारे इंटरनल डायमीटर के बराबर होगा. ये अगर फिगर में देख रहे हो, जो ये इंटरनल डायमीटर है हमारा ये वाला, इसके बराबर होगा जो डायमीटर ऑफ द शाफ्ट होगा ड्राइविंग और ड्रिवन का दोनों का. तो नेक्स्ट वन कहता है आउटर डायमीटर ऑफ द स्लीव डी इज 2d + 13. ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला ही है. जो आउटर डायमीटर, अब ये आउटर डायमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास आउटर डायमीटर है, ये कितना होगा कहता 2d + 13, where d is the diameter of the shaft and length of the sleeve is 3.5d. लेंथ ऑफ द स्लीव क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ हो जाएगी, तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3.5d, where d is the diameter of the shaft. So ये स्टैंडर्ड फार्मूलेज है जो हम यूज कर सकते हैं अपना डिजाइन ऑफ स्लीव के लिए, आगे हम यूज भी करेंगे न्यूमेरिकल्स में. तो where d is a diameter, inner diameter, d is the diameter of the shaft and inner dia किसके बराबर होगा, diameter of shaft के बराबर होगा था. outer diameter किसके बराबर है, 2d + 13 के बराबर है, and length of the sleeve 3.5d. तो कुछ दिखाया उसने, ये स्लीव हॉलो स्लीव आ गया, एक साइड से हमने ड्राइविंग शाफ्ट है, ड्रिवन शाफ्ट है, और एक की इसके अंदर इंसर्ट की हुई है, ठीक है. तो वे d is a diameter, inner diameter and outer diameter of the sleeve 2d + 13 and length of the sleeve is L = 3.5d. Next one is the spilt muff coupling. नाम से पता लग रहा है इसको क्या होगा, स्पिल्ट किया होगा, 2 पार्ट्स में स्पिल्ट किया होगा, ब्रेक किया होगा बीच में से, ठीक है. होगी हमारे पास ये वो था हमारे एक चैनल में ही था हमारे पास जो मफ कपलिंग थी. अब इसमें स्पिल्ट उसने जोड़ दिया है, तो इसको 2 पार्ट्स में, 2 हाफ्स में बनाया होगा. तो in this coupling the muff or the sleeve is made into 2 half parts of the cast iron and they are joined together by the means of mild steel studs or the bolts and nuts as shown in the figure. बाकी करेंगे इसको हम दोनों पार्ट्स को उसको नट एंड बोल्ट से कनेक्ट कर देंगे. Spilt muff coupling or a clamp coupling, this is also called the compression coupling. Compression coupling इसलिए करेंगे कि जब नट एंड बोल्ट फूट से लगाएंगे तो कंप्रेस करेंगे इसको. The muff or the sleeve are made into the 2 halves. 2 halves में इसको बनाएंगे था, bolted together. The material used for the coupling is cast iron. Basically cast iron हम इसे use करेंगे. The lower half of the muff is fixed from the below and the top half is placed from the above. Both the shaft ends are attached together and a single key is fitted in the key base. The torsional movement is transmitted by the friction. The number of bolts used for the clamping may be 2, 4, 6. The number of bolts हम use करेंगे तो 2, 4, 6 use कर सकते हैं. This coupling is used for the heavy duty at the moderate speeds. The advantages of this coupling during assembling and disassembling. ठीक है, तो कपलिंग तो वैसे 2 पार्ट्स में होगी, जो इसको क्या करेंगे हम नट एंड बोल्ट से दोनों को क्लैम्प कर देंगे. जैसे इसमें फर्स्ट फिगर में मैं दिखा रहा था, ये कुछ ऐसी होगी कहता है ये. और जो सिंगल मफ थी हमारे पास वो कैसी थी, मफ ऐसी थी, वो सिंगल पीस में थी. और जब इसको मैं 2 हाफ्स में डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगी स्पिल्ट मफ कपलिंग हमारे पास. जो रिजिड कपलिंग हम कर रहे हैं उसमें पहली हमारे पास थी मफ कपलिंग और सेकंड थी स्पिल्ट मफ कपलिंग. तो ये स्पिल्ट मफ कपलिंग दिखा रहे हैं, उसको नट एंड बोल्ट से हम टाइट कर देंगे, ये दिखा रहा है. ठीक है, ये हमारे पास मफ आ गया और उसको नट एंड बोल्ट से हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया और की इंसर्ट कर दी. तो इसकी भी हमारे पास
is that there no change in the position of the shaft, the usual proportions of the clamp split muff couplings, where d is the diameter of the shaft, small d is the diameter of the shaft, and inner diameter of the sleeve. इसका inner diameter किसके बराबर होगा? था अपना ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट के बराबर होगा, जैसे उसमें था सेम वैसे इसमें भी वही है. Outer diameter of the sleeve का 2d plus 13 ही है, and length of the sleeve L equal to 3.5d. सेम जो नोटेशंस हम इसमें यूज कर रहे थे 2d plus 13 और 3.5d. ठीक है, तो लेंथ आ जाएगी इसकी स्लीव की हमारे पास, इनर डाया आउटर डाया, ये हमें कैलकुलेट कर लेंगे आगे हम न्यूमेरिकल्स में इसको. नंबर ऑफ बोल्ट्स हम यूज करेंगे, टेबल हम आगे देखेंगे, एक हमें डाटा टेबल दिया होगा जिसमें हम इसकी वैल्यूज चेक कर सकते हैं. वो डिजाइन ऑफ अपना जब डायमीटर ऑफ शाफ्ट हमारे पास आ जाएगा तो वहां से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था हमारे पास आज के लिए टुडेज टॉपिक, ये हमारे पास थे. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इसकी फ्लेक्सिबल कपलिंग. ठीक है, फ्लेक्सिबल कपलिंग भी हमारे पास टाइप्स हैं, और हमारे पास जो थर्ड वन थी इसकी हमारे पास था 3 टाइप थी हमारे पास इसकी. ठीक है, तो रिजिड कपलिंग की हमने आज स्लीव मफ कपलिंग की और क्लैंप स्प्लिट मफ. नेक्स्ट हम करेंगे फ्लेंज कपलिंग, उसके बाद हम करेंगे इसमें फ्लेक्सिबल कपलिंग. फ्लेक्सिबल कपलिंग में हमारे पास क्या पुश पिन टाइप कपलिंग है, यूनिवर्सल कपलिंग है, ओल्ड हैंड कपलिंग है. तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स फॉर द टू दिस सेशंस. सो थैंक यू.